हार के बाद उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुओं के खिलाफ फिर उगला जहर। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, सनातन जिसने लोगों को बांटा उसे खत्म कर देना चाहिए। विजय थलापति के शपथ में वंदे मातरम सुनकर बौखलाए उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन ने कहा, बंगाल में सीएम शपथ में वंदे मातरम नहीं बजाया, तमिलनाडु में क्यों? तमिलनाडु में करारी हार के बाद डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन की अकड़ बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। वही राजनीतिक अहंकार दिखाई दे रहा है जो कुछ वक्त पहले तक था। एक बार फिर उदयनिधि स्टालिन ने हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ जहर उगला है। दरअसल विधानसभा में नए मुख्यमंत्री विजय थलापति के सामने उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात दोहराई है। यह बयान कोई नया नहीं है, इससे पहले भी उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर चुके हैं। सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं उदयनिधि स्टालिन। ये जो है एमके स्टालिन के बेटे हैं, डीएमके के नेता हैं और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में हुए हैं उसमें हार इनकी हुई है, या यूं कहें कि एक ही झटके में विजय थलापति ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और उसके बाद भी इनके तेवर नरम नहीं पड़े हैं। अब विधानसभा में ये बात उन्होंने नए मुख्यमंत्री विजय थलापति के सामने कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वंदे मातरम जब विजय थलापति ने सीएम पद की शपथ ली वहां पर बजाया गया तो उससे सुनकर भी वो बौखलाए हैं और उन्होंने ये कहा है कि वंदे मातरम क्यों बजाया गया? तमिलनाडु का राज्य गीत है, उसे सर्वोपरि रखना चाहिए। बंगाल में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो वहां पर वंदे मातरम नहीं बजाया गया था, जबकि तमिलनाडु में इसे बजाया गया। हमारे तमिलनाडु के राज्य गीत को कभी भी दूसरे स्थान पर नहीं धकेला जाना चाहिए, ये कह रहे हैं उदयनिधि स्टालिन। लेकिन सनातन को लेकर उन्होंने जो बातें कही हैं उसको लेकर एक बार फिर से जबरदस्त सियासत बीजेपी के तमाम नेताओं ने जवाब दिया है और क्या जवाब दिया है उदयनिधि स्टालिन को सुनिए। Again, once again, rake up the anti-Hindu sentiment in Tamil Nadu after losing power, the DMK losing power, and his father losing as a legislative assembly member in the recently concluded assembly elections. The frustration is again building up in DMK, especially in Udayanidhi Baran, and he has expected that he will be the chief minister of the state because DMK is going to come into power. But today, people have rejected. The fundamental thing is that people have rejected because of his anti-Hindu sentiments and hate speech, along with repeatedly telling in the public domain that Sanatan Dharman should be abolished and then, rejected in that. The Bharatiya Janata Party, Telangana condemns this kind of a statements of a leader who has become the leader of opposition in Tamil Nadu Assembly. While in Assembly session also, he has spoken about Sanatan Dharma. Even the Congress party has rejected. Because of the rejection, the dejection is so much in his, the frustration. Today, he is talking again about Sanatan Dharma. The Bharatiya Janata Party Telangana dismisses this kind of an irrelevant and irresponsible statement by the Stallion Junior, where his ambitions are more, but his anti-developmental activities, anti-national activities, and anti-Hindu sentiments, activities are more. People have literally rejected on that. He should have studied, the Bhagavad Gita, or he should have studied Upanishads. He should have studied, the Ramayana. Then he would have understood the importance of Sanatana Dharma, where it will teach a person to be a good citizen of this country, along a good, the person for the development of his family, for development of his state, development of the country. Because he did not study, of his arrogance and irresponsible, people have literally rejected. The Bharatiya Janata Party demands this kind of a statement should be withdrawn immediately and apology in front of Hindus. Of Sanatan in assembly or BJP calls it toxic trend. उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है वह
सनातन का विरोधी ही नहीं, वह देश की मूल संस्कृति के विरोध में भी है और ये बार बार इस प्रकार का जहर उगलते हैं। अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस इसमें अपना पक्ष स्पष्ट करेगी। मैं आपको जानकारी दूं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति की मौजूदगी में 12 मई 2026 को तमिलनाडु विधानसभा को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टैलिन ने कहा कि सनातन जिसने लोगों को बांटा है उसका नाश होना चाहिए। ये बात उनकी तरफ से कही गई और ये पहला मौका नहीं है उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन के खिलाफ जहर उगला हो। इससे पहले भी वो सनातन को खत्म करने की बात कह चुके हैं। इसी साल की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट की मदेरू बेंच ने सनातन धर्म पर उनकी 2023 की टिप्पणी को हिंदू समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच माना था। बावजूद इसके उदयनिधि स्टैलिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमिलनाडु सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री रहते हुए 2023 में उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की तुलना मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का सिर्फ विरोध नहीं बल्कि उसका पूरी तरीके से नाश होना चाहिए। उसके बाद चुनाव आए और तमिलनाडु की जनता ने एमके स्टैलिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टैलिन जो कि सनातन के खिलाफ घृणा रखते हैं, नफरत करते हैं वो हिंदुत्व से, उन्हें सबक सिखाने का काम किया। टीवीके को वहां की सत्ता पर काबिज किया और उसके बाद भी वो नहीं सुधरे। उनके तेवर बिल्कुल भी कम नहीं दिखे। वहीं पर बाद में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपने बयान का समर्थन ही किया। उन्होंने दावा किया कि सनातन धर्म जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। उन्होंने कहा कि मानवता और समानता के लिए सनातन धर्म को जड़ से खत्म करना जरूरी है। इसके बाद जनवरी 2026 में मद्रास हाईकोर्ट की मदेरू बेंच ने रिची सिटी पुलिस द्वारा बीजेपी नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। यह एफआईआर उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़कर पेश करने के आरोप में दर्ज की गई थी। जस्टिस एस श्रीमती ने तब कहा था कि उदयनिधि का जो बयान है वो हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। ऐसे में उस पर सवाल उठाने का तो अपराध ही नहीं माना जा सकता, ये सीधे तौर पर कहा था। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जब उन्होंने एक बार फिर से सनातन धर्म को नष्ट करने की, उसका नाश करने की, उसे खत्म करने की बात कही है, तो क्या जो कार्रवाई है उन पर होती है? क्या वाकई एक बार फिर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? ये मामला एक बार फिर से क्या कोर्ट जाएगा? क्या कुछ होता है इस मामले में? और देखना होगा। लेकिन ये भी दिलचस्प होगा देखना कि तब वो राज्य की सत्ता पर काबिज थे लेकिन आज वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। हालांकि इसी दौरान उन्होंने नए मुख्यमंत्री विजय थलापति से ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि हम आपके साथ कर रहे हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। ये सारी बातें उनकी तरफ से कही गई, लेकिन क्या उनका रुख रहेगा ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।